Yes, friends, good morning to all of you. Friends, today we are taking a new concept. We have learned up to here the three main concepts we have learned. The first we have learned is the sacrifice ratio. Second, we have learned the gaining ratio. And third, we have learned the topic revaluation account. Now, we are going towards the last concept of this particular chapter. Now, what does it mean to us? It means the distribution of accumulated profit and accumulated loss. So what happens here when when a partner is when the partnership firm is reconstructed at that circumstances, if any profit or any loss is already been there in the sum, already there in their balance sheet, they will distribute among them. That is the topic. So let's see, friends, the topic. Now the question is, Ale and Sanket, the two partners are there, are the partners of a partnership firm. Profit and loss sharing among them is what? 2:1. Ratio is 2:1. And as on 31st March 2017, the following balance is given. Now, first is profit and loss debit balance. It is accumulated loss. Which one it is? It is accumulated loss. Reserve fund. Reserve fund is an accumulated profit. Accumulated profit. While workman profit sharing fund, that we have to, it's a liability because we have to give to the partners. Profit sharing fund, it's a liability. Workman accident compensation fund. Accident compensation fund. It's an accumulated profit. Now, what they want to say? On the above date, Ale and Sanket decided to change their profit and loss ratio to 1:1. They have decided to change their profit and loss ratio to 1:1. A claim of 6,000 is outstanding payable to worker against the worker accident compensation fund. What they want to say, claim. That means a 6,000 claim is there. That means out of this 21,000, one worker has claimed how much? 6,000. So, so a company cannot distribute the 21,000 total. The company can distribute the remaining amount only. Pass entries for accumulated profit and loss in the books of the firm. So friends, we are starting the topic. Give the heading, journal entries in the books of partnership firm. Journal entries in the books of partnership firm. Journal entries in the books of partnership firm. Prepare the columns, serial number, particulars, LF, debit rupees, credit rupees. Serial number, particulars, LF, debit rupees, credit rupees. Let's start the topic. The first is profit and loss debit balance. If debit is there, obviously it will come on the asset side. So asset always an accumulated loss. So what we have to write? So give the first heading, friends. First heading, what we have to give? Distribution of accumulated loss. Distribution of accumulated loss. So what you can see now? You can see is profit and loss, which balance is given to us. It's debit balance. If it is debit, then it will be credited. डेबिट है तो क्रेडिट होगा, क्रेडिट है तो डेबिट होगा. चलो तो देखते हैं कैसे करना है. सो इट्स अ डेबिट बैलेंस, इट शुड बी क्रेडिटेड. अगर अगर प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करना है तो किसको देना है आपको? टू द पार्टनर्स. एंड हु आर द पार्टनर्स नेम? अलेस कैपिटल ऑब्लिक करंट. पता चल रहा है आपको? अलेस कैपिटल में जाएगा या फिर करंट में जाएगा? कैपिटल है तो कैपिटल में लेके जाएंगे, करंट है तो करंट में लेके जाएंगे. ये हो गया अले का. दूसरे
पार्टनर का नाम है संकेत कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट। टू किसको देना है, टू सॉरी टू किसको क्रेडिट करना है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना हम लेके जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में हम कितना लेके जाएंगे, 18,000। और कौन सा रेशियो बोला है फ्रेंड्स, 2:1। चलो तो देखते हैं, कैलसी पे आओ। 18,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, 2:1। सो 12,000 और सेकंड कितना आ रहा है, 6,000। ओके चलो अब सेकंड कंसेप्ट, ये हुआ आपका फर्स्ट वन। अब रिजर्व फंड, ये क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ये, और प्रॉफिट शेयरिंग फंड बांट नहीं सकते, इट्स अ लायबिलिटी। और एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड वो भी क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑलवेज शोज विच बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि ये चीज कहाँ आती है, लायबिलिटीज में आती है, रिजर्व जैसा है, जनरल रिजर्व फंड। वैसे ही एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, उसका भी बैलेंस कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा, है ना। तो अब क्रेडिट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो पहला नाम है रिजर्व फंड अकाउंट डेबिटेड, दूसरा नाम है वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिटेड। टू, अब ये किसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स को, टू अलेस कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, टू संकेत कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। सही है। नरेशन लिखना रह गया था, नरेशन क्या आएगा, बीइंग accumulated loss is distributed, और यहां लिखेंगे being accumulated profit is distributed। चलो तो रिजर्व फंड में ले जाते हैं। रिजर्व फंड है 27,000, तो रिजर्व फंड के सामने 27,000। एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड में टोटल 21,000 है, लेकिन उसमें 6,000 किसी वर्कर ने क्लेम किया है, सो हम पूरा नहीं ले सकते। सो 21,000 माइनस 6,000 करना पड़ेगा। तो 21 माइनस 6 कर देंगे तो कितना बचेगा फ्रेंड्स, 15,000। अब आप कैलसी लो, 27,000 प्लस 15,000 वी गेट अ 42,000 आंसर। और कौन से रेशियो में बोला है, 2:1 में बोला है। 42,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये देगा आपको 28,000। और माइनस करते या फिर कैलकुलेट ही कर लो, 42,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, 16,000। ये उनके अकाउंट में जाएगा, 6,000 वर्कर को देने के बाद भी ये उनके अकाउंट में जाएगा। क्लियर। तो ये थोड़ा अलग टॉपिक है, पता चल रहा है आपको। पहला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस। लॉस कैसे पता चलेगा, इफ इट इज गिवन इन द डेबिट साइड, डेबिट बैलेंस बोला है तो लॉस हो जाता है। अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो कैसे पता चला, क्रेडिट बैलेंस है इसलिए। तो ये हुआ आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस।
तीसरा है जो हमने बांटा नहीं है। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हमने कर दिया, रिजर्व फंड हमने कर दिया, प्रॉफिट शेयरिंग फंड नहीं बांट सकते, नहीं कर सकते। तो क्या नोट आएगा? वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड क्या है? इज एन लायबिलिटी। यस, क्या है ये? लायबिलिटी है, हम इसे बांट नहीं सकते। इट्स अ लायबिलिटी, इट्स अ लायबिलिटी। तो ये ना प्रॉफिट में आएगा ना लॉस में आएगा। ठीक है, देख लो अच्छी तरीके से एक बार, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस। ओके, अब आगे देखो, मैंने यहां लिख के बना के रखा है आपके लिए। किस तरह से लिखा है? अलेस कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिटेड। देखो इस बार, हाँ बस सही है, 12,000। संकेत कैपिटल ऑब्लिक करंट 16,000। प्रॉफिट एंड लॉस 18। नरेशन देखो, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ये 3 मार्क के लिए आता है, 3 मार्क के लिए आता है। और इलस्ट्रेशन भी है टेक्स्ट बुक में, राम एंड रहीम का एक सम है जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं। रिजर्व फंड में लिखा है 27,000। एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन में 21 में से 6,000 जाता है, 15,000। तो अलेस कैपिटल इसमें जाएगा 28 और 14। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और लास्ट में क्या लिखा है? WPSF इज अ लायबिलिटी, वो हम नहीं बांट सकते। इट्स अ लायबिलिटी, हम नहीं बांट सकते। क्लियर? तो क्या फ्रेंड्स, क्या टॉपिक था? लास्ट टॉपिक था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस। इसके बारे में हमने डिस्कस किया। एक नया सम आ रहा है अपने पास, इलस्ट्रेशन सम नंबर 13। इलस्ट्रेशंस आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सम नंबर 13 देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, prepare a revaluation account and balance sheet after evaluation in the books of Sajan and Nirvi। चलो तो एक बार देख लेते हैं कौन सी चीज कहां रखना है। कैपिटल ही है, सिर्फ यहां पे सिर्फ कैपिटल ही है, तो ये कहां जाएगा फ्रेंड्स? ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। करंट नहीं है ना, अगर करंट होता तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते थे, तो करंट नहीं, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्या है? ये है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ये। और प्रॉफिट कहां लेके जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल। बैंक लोन, बैंक लोन ये क्या है? लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में लिखेंगे। क्रेडिटर और बिल पेएबल ये क्या है? करंट लायबिलिटी, यानी जहां है वहीं लिखना है। आगे 1 मिनट। नॉन करंट एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग जा दिया है, वहां लिखेंगे मशीन, फर्नीचर। इन्वेस्टमेंट में एक पॉइंट है, क्या कहना चाहते हैं? मार्केट में इसका वैल्यू कितना है? 18,000 है, दिया है 20,000, तो 2,000 हम कम कर देंगे, यानी पॉइंट हो गया एक। 2,000 क्या कर देंगे? कम कर देंगे। करंट एसेट डेटर और बैड डेट रिजर्व, तो डेटर्स में से ये वाला पॉइंट आ जाएगा, बराबर। चलो, स्टॉक है और कैश बैलेंस है, बराबर। तो स्टॉक जैसा है वैसे और बैंक बैलेंस जैसा है वैसे। चलो आगे बढ़ते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 10%। बोलो, लैंड एंड बिल्डिंग अगर बढ़ेगा तो ये क्या है? एसेट। एसेट बढ़ रहा है, एसेट अगर बढ़ रहा है तो रिवैल्यूएशन क्या करेंगे? क्रेडिट। याद आया? मशीनरी और फर्नीचर को रिड्यूस करना है, ये एसेट है, ये कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब डेबिट।
₹1000 का बैड डेब्ट की जरूरत नहीं है, बैड डेब्ट की जरूरत नहीं है, 1500 है, बोलते हैं कि 1000 की जरूरत नहीं है, तो आपको तो फायदा पहुंच गया इसमें। तो अब क्या हो रहा है, आपका पॉइंट में क्या हो रहा है, आपकी जो बैड डेब्ट रिजर्व है वो कम हो रहा है, तो आपको फायदा है, फायदा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट। पता चला आपको, बैड डेब्ट रिजर्व बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है तो फायदा होता है। 1500 रिपेयरिंग एक्सपेंस इज रिक्वायर्ड फॉर स्टॉक, स्टॉक में 1500 की रिपेयरिंग की जरूरत पड़ रही है। तो स्टॉक है, स्टॉक एसेट है, एसेट पे खर्चा हो रहा है, खर्चा हो रहा है तो उसका वैल्यू घटेगा, तो रिवैल्यूएशन डेबिट। 1500 क्रेडिटर्स नहीं देने हैं, नहीं देने हैं, आपकी लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो फायदा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये आपकी लायबिलिटी हो गई और ये बढ़ रहा है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट। समझ में आ रहा है एक एक पॉइंट आपको। इनकम रिसीवेबल, इनकम मिल रहा है, मिलने वाला है, एसेट है, एसेट इज इंक्रीजिंग, रिवैल्यूएशन क्रेडिट। फायदा हो रहा है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, नुकसान हो रहा है, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। ओके, क्लियर। तो हमने देखा, आज नया नया पॉइंट देख रहे हैं हम आज। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल में लेके जाना है, बाकी जो जहां आएगा वहीं लिखना है, और ये सब हमने किया, एसेट, लायबिलिटी एंड ऑल। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। ये कॉलम तैयार करना है, इसमें आपसे जर्नल एंट्री पूछा है। चलो हम जर्नल एंट्री पास करने जा रहे हैं, ठीक है, ऑरली बता रहा हूं मैं। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाय 10%। ये हो गया होगा होप, नहीं तो वीडियो वापस आप देख लेना, ठीक है। आई एम जस्ट रबिंग इट आउट। शुरू करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग को इंक्रीज करना है, तो एंट्री लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट बाद में देखते हैं। मशीनरी और फर्नीचर को कम करना है, मशीन अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, दोनों नुकसान है। सॉरी, माय मिस्टेक, गलती हो गई। कम करना है, यस कम करना है। जस्ट 1 मिनट। पॉइंट ध्यान दे के रीड नहीं करेंगे तो गलती तो होने वाली है। ओके, तो क्या था, रिड्यूस करना है, रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कम होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट हम बाद में देखेंगे। तीसरा, बैड डेब्ट रिजर्व की जरूरत नहीं है, नहीं है तो फायदा हो गया आपको, तो फायदा है, इसलिए बैड डेब्ट रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये भी हो गया। 1500 रिपेयरिंग एक्सपेंस इज रिक्वायर्ड फॉर स्टॉक, स्टॉक में 1500 का रिपेयरिंग एक्सपेंस का खर्चा है, नुकसान है, नुकसान है मतलब क्या एंट्री करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक, नुकसान है।
1500 क्रेडिटर नॉट टू बी पेड, नहीं देना है, नहीं देना है तो फायदा हो गया, फायदा हो गया मतलब क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इससे क्या हुआ, इससे भी नुकसान है हमारा, मैं नंबर दे देता हूं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इनकम रिसीवेबल, ये फायदा है, इनकम रिसीवेबल टू रिवैल्यूएशन। ओके, अब अमाउंट लिखते हैं। चलो, लैंड एंड बिल्डिंग को बोला है 10% से बढ़ा दो, तो 1,40,000 का 10% 14,000। मशीनरी और फर्नीचर को 40% कम कर दो, 80,000 का मशीन है, 80,000 का मशीन है और बोल रहे हैं कि 40% कम करो, तो 32,000 ये मिलेगा आपको मशीन में। फर्नीचर भी वैसे ही बोला है, फर्नीचर 30,000 है, 30 का 40%, 12,000, 12,000। इन दोनों का टोटल करो, यहाँ क्या आएगा 44,000। बैड डेट रिजर्व की जरूरत नहीं है 1000, तो फायदा हो गया। फोर्थ में 1,500 रुपए का आपको नुकसान है, स्टॉक में डाल दो 1,500 रुपए। 1,500 रुपए क्रेडिटर्स को नहीं देना है, तो ये तो फायदा हो गया 1,500। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमको नुकसान है, ये 10,000 हो गया, और इनकम रिसीवेबल से हमको फायदा हुआ है। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्री है, लिख लो आप पहले इसको, आई एम वेटिंग फॉर दैट, कंप्लीट कर लो इसको आप। ग्रीन टी है, और कुछ मत सोचना। कंप्लीट करो जल्दी से। हो गया सबका? अब अकाउंट बनाना है, अकाउंट कॉलम तैयार कर दो, नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे इसको। कॉलम तैयार करो, रिवैल्यूएशन कॉलम पता है आपको, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। रिवैल्यूएशन में एक कुछ 8 लाइन 10 लाइन छोड़ दो आप, 10 लाइन छोड़ दो आप इसमें। पार्टनर्स कैपिटल में पहुंचो, इसमें भी वही डेबिट क्रेडिट कंपलसरी लिखना है, और इसके कॉलम रेडी करो। पर्टिकुलर्स और पार्टनर्स के नाम, तो दो पार्टनर्स थे ना यहाँ पे, सज्जन और निर्मी, तो एस और एन, पर्टिकुलर सज्जन एंड निर्मी। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज अमाउंट अमाउंट, एसेट अमाउंट अमाउंट, लायबिलिटीज अमाउंट अमाउंट, एसेट अमाउंट अमाउंट, कॉलम तैयार कर दो सब कुछ। ये सब में टेक्स्ट बुक आपके सामने होना चाहिए, राइट। सो इस तरह से ये बनेगा, और ये 14th लास्ट क्वेश्चन है, देखो ये कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट वी आर मूविंग टू 5th चैप्टर, एडमिशन। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, सेकंड फाइनल अकाउंट हो चुका है, थर्ड गुडविल हो चुका है, फोर्थ रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा, 5th चैप्टर शुरू हो जाएगा। इट्स अ बिग चैप्टर। ओके,
रिवैल्यूएशन, डेबिट क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल, डेबिट क्रेडिट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कॉलम कौन से हैं फ्रेंड्स? लायबिलिटीज, liabilities, amount, asset, amount, liabilities, amount, asset, amount. I'm not starting this particular topic, complete नहीं होगा अपने से। so यहाँ तक आज हमने क्या क्या किया था? We have started with the topic distribution of accumulated loss and accumulated profit। ये दो टॉपिक के बारे में हमने थोड़ा देखा। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में देखा, डेबिट बैलेंस है इसलिए क्रेडिट होता है, रिजर्व फंड क्रेडिट है इसलिए डेबिट होता है, प्रॉफिट शेयरिंग फंड को बांट नहीं सकते हैं, लायबिलिटी होता है, एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड में अगर कुछ क्लेम है तो वो माइनस करके आपको आगे बढ़ना है। तो ये हमने देखा था पूरा। ये जर्नल एंट्री से इसका ऐसे ही पास करना है। इसके 3 मार्क्स है, 3 मार्क्स का, एक जर्नल एंट्री 1 मार्क का है, ठीक है। तो महंगा है, तो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू यूज अवर माइंड। चलो फिर है 13th में आपसे बोला है कि क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्री पास करना है। मैंने वो जर्नल एंट्री पास करवाया। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें बनाना है, कॉलम तैयार करवाया है, बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। ओके okay, then we are stopping here then.